Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित है बाजार विश्लेषक शरद कोहली। कोहली जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शरद, वेलकम। नमस्कार, थैंक यू। और पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं राजेश लेख। ICICI Bank's December quarter net profit rises 17.7% to 5,498 crore rupees. Benchmark domestic markets plunge over 5% this week to post their biggest weekly decline in 8 months. And in international markets, US stocks also register its biggest weekly fall since October. आईसीआईसीआई बैंक का शुद्ध लाभ 17.7% की वृद्धि के साथ 5,498 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। घरेलू शेयर बाजार इस सप्ताह 5% लुढ़के 8 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अमेरिकी शेयरों में अक्टूबर के बाद से सबसे बड़ी गिरावट दिखाई दी। और आज की पहली खबर, निजी क्षेत्र की बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने दिसंबर में समाप्त तिमाही में पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले सकल शुद्ध लाभ में 17.7% का उछाल दर्ज किया। इस तिमाही में बैंक का सकल शुद्ध लाभ 5,498 करोड़ 10 लाख रुपए का रहा। निजी क्षेत्र की इस दूसरी सबसे बड़ी बैंक के एनपीए का अनुपात इस दौरान 4.4% रहा। मोटे तौर पर कुल प्रावधान पिछले वर्ष के 2,083 करोड़ के मुकाबले इस तिमाही में 2,741 करोड़ रुपए का रहा। सितंबर 2020 में समाप्त तिमाही में कुल प्रावधान 2,995 करोड़ रुपए के थे। Sharad, going forward, the NPAs are going to play a very major role in deciding where the banking sector is going to go. Absolutely. I think during Corona, we saw a lot of businesses defaulting. I mean, the businesses were closed or they had not been able to resume fully. So I think we can look at not a very healthy position as far as NPAs are concerned. And going forward, even RBI has expressed its concern that the NPA may rise. But I think the government is quite prepared because we can expect some recapitalization of these nationalized banks. As for the public banks, as for the private banks, I think they will have to look at their balance sheets, the strength of their balance sheets, and their promoters as to how far they can pump in money. But I'm quite convinced that the banking sector has to be prepared for some NPAs, and I think this is a global phenomenon. It's not just in India.
if you look at the world, the global credit situation, we saw some of the best businesses failing, especially businesses connected with tourism, hospitality, manufacturing. I think they suffered the most. And we heard in the economic survey which came yesterday, we heard the CEA, the Chief Economic Advisor, also talking about that tourism, hospitality, manufacturing were the worst sufferers. So I think all these businesses who have borrowed from bankers, they probably maybe, they turn out to be NPAs, maybe not, but fingers crossed. But I think the bankers should be quite prepared for the worst situation. और दिल्ली से हमारे श्रोता सतीश लाइन पे हैं। सतीश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या भारत बासमती राइस को बासमती के नाम से एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, बल्कि पाकिस्तान बासमती को बासमती के नाम से एक्सपोर्ट करेगा? मैंने एक न्यूज देखी है, उसके अंदर ये बताया गया कि भारत ने यूरोपियन यूनियन कंट्री में बासमती का GI टैग प्राप्त करने के लिए केस करा था, और वो केस भारत हार गया और पाकिस्तान जीत गया। तो अब भारत बासमती को किस नाम से एक्सपोर्ट करेगा सर, ये बताइएगा थोड़ा डिटेल में। धन्यवाद। हाँ जी, देखिए जी, जो GI टैग भारत ने लिया था, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बासमती का जो ओरिजिन है वो पंजाब प्रोविंस से होता था। ये मैं आपको प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ। उस टाइम भारत और पाकिस्तान एक ही मुल्क होता था, और इसीलिए पाकिस्तान ने कुछ ये भी था, कुछ पाकिस्तान की थोड़ी सी शरारत भी थी, उसने भारत का बासमती टैग लेके और एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब जो क्वालिटी है बासमती की, वो दोनों जगह से एक जैसी जा रही है। बासमती पाकिस्तान का की मतलब उसमें कोई कमी नहीं होती है। तो GI टैग जो मिलता है वो आपको एक खास जगह में कोई खास चीज अगर पैदावार उसकी होती है तो वहां पर वो दिया जाता है, या वहां पर वो प्रोड्यूस की जाती है। तो जब यूरोपियन यूनियन ने देखा कि पाकिस्तान से आने वाला बासमती भी उसी क्वालिटी का है, तो उन्होंने दे दिया। अब भारत इसके खिलाफ अपील में जा रहा है, और अपील में जाके मुझे उम्मीद है कि हम कन्विंस कर पाएंगे कोर्ट्स को, वहां की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनको हम कन्विंस कर पाएंगे कि बासमती असल में भारत से जाता है, और बहुत बड़ा हिस्सा भारत के पास बहुत बड़ा शेयर है बासमती राइस एक्सपोर्ट का। From Mumbai, we are joined in by Ravikant. We welcome you, Ravikant. Yeah. Please ask your question. गुड इवनिंग पूरी मार्केट मंत्रा की टीम को। Good evening. हाँ सर, मुझे जानना है, जैसे अभी जो ब्रोकर डिफॉल्ट हुए थे, तो मेरा भी एक केस है जो BMA वेल्थ क्रिएटर्स के अगेंस्ट। हमने दोनों एक्सचेंज में अपना क्लेम डाला हुआ है, बट BSE से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है कि कौन से स्टेज पे पहुंचा है हमारा क्लेम, और NSE ने प्रोसेस करना चालू कर दिया है। तो इसके लिए कुछ सजेशन है, हम लोग कहाँ जाके अपना क्लेम वापस से बात कर सकते हैं किसी से, कब तक होगा डिस्बर्स? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है आपने एक्सचेंजेस में तो क्लेम डाला, पर आपको सेबी में क्लेम डालना चाहिए। सेबी का एक कंप्लेंट सेल है, आप उसको ऑनलाइन भी डाल सकते हैं। आप अगर सेबी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, और वहां पर आप पूरे अपने केस का जो आपका ब्रोकर्स क्लेम था उसका आप ब्यौरा दें, उसका आप बैकग्राउंड दें कि किस उपलक्ष्य में आप ये क्लेम डाल रहे हैं और क्या आपका पूरा केस है। और सेबी से हमने देखा है, बहुत सारे निवेशक मेरे भी संपर्क में रहते हैं, मैंने देखा है कि बहुत जल्दी उनको सेबी से रिस्पांस मिलता है। सेबी फौरन ब्रोकर को चिट्ठी भेजता है, ब्रोकर को नोटिस भेज देता है, और बाकायदा सेबी वहां पर एक न केवल रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम करता है बल्कि एक क्वाज़ाई कोर्ट का भी काम करता है। तो आपकी समस्या का अगर आप सेबी को अप्रोच करेंगे तो बहुत जल्दी निवारण हो जाएगा। और गुरुग्राम से हमारे श्रोता अनिल लाइन पे हैं। अनिल नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम को। मैं ये जानना चाहता था कि ये वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी क्या होती है, और ये कौन सी, क्या लास्ट डेट को होती है, फ्राइडे और लास्ट डे ऑफ द मंथ? नमस्कार अनिल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनको ये, खासकर जो F&O फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, उनके लिए जानना जरूरी है। जी हाँ, थर्सडे को वीकली एक्सपायरी होती है और महीने के आखिरी गुरुवार को मंथली एक्सपायरी होती है। अब देखना यह है कि वीकली एक्सपायरी होती है सिर्फ जो निफ्टी के इंडेक्सेस होते हैं उसमें वीकली एक्सपायरी होती है, और जो स्टॉक वाइज एक्सपायरी होती है वो खाली मंथली बेसिस पे होती है। तो जो लोग निफ्टी के इंडाइसेस में ट्रेड करते हैं उनके लिए वीकली एक्सपायरी जो कि हर गुरुवार को होती है वो रेलेवेंट हो जाती है, और जो लोग स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब डेरिवेटिव्स में स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, आप अगर फ्यूचर या ऑप्शन का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, वो आपका महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है। आपको एक्सपायरी का अर्थ तो पता ही होगा कि उस डेट को जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, भले ही आप
उसको ना बेचें, अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है ना कवर करें, और अगर आपने खरीदा हुआ है उसको ना बेचें, तो अपने आप उसको जो भी उस टाइम प्राइस होती है उस पे वो स्क्वायर अप कर दिया जाता है। चेन्नई से हमारे श्रोता चंद्रकांत लाइन पे हैं। चंद्रकांत जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर, मैंने एक कंपनी के सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स खरीदे थे जी। That company went into arbitration or liquidation. I don't know the technical word exactly. Now it has been taken over by another company. Now, do you think I can get back my money being a secured debenture? Yes, the meaning of secured debenture is that a debenture is a kind of a loan which company takes in the form of securities. By giving out those securities to the investors, it is a sort of a loan. So when you're taking a secured non-convertible debenture loan, it is purely in the form of a debt. And the word secured there means that some assets of the company cover your debt, which means that your debt is secured by the assets which company has in its possession. So therefore, if the company went into liquidation or arbitration, whatever be the case, since you're not aware as to what happened to that company, but I'm sure the company must be on the verge of winding up or closing down or probably being taken over by some other company. So what I would suggest is you should contact the company which has taken over this company, because in a normal amalgamation, takeover, acquisition deal, the assets of the old company are taken over by the new company. So therefore, the new company becomes answerable to the investors. So therefore, that company will have to repay those debentures. And I'm sure in the acquisition deal, in the takeover deal, this clause must be mentioned that what will happen to the secured non-convertible unpaid or unredeemed debentures. So you must approach the new company, and I'm very sure you will be able to get back your hard-earned money. Jitendra joins us now from Delhi. We welcome you, Jitendra. Good evening to the entire team. My question to the expert is that, in your opinion, are we heading for a very big fall in the market just after the budget? Although there has been correction, but still I feel there should be a big fall, because the budget will never, meet the expectations. So kindly elaborate on it. Thank you. See, Jitendra, that's a billion-dollar question and anybody's question at this point of time. And I wish, we were market expert astrologers as well to forecast. But having said that, going by the logic and going by the market knowledge that we use to analyze the movement of markets, the answer to your question is that some of the sectors where we will find trust being given by the budget, they will move up. So our word of advice to investors is that in terms of broader markets, yes, market may show correction, because you notice right from March, when the Nifty was 7,500 approximate, it almost went up to 15,000. We saw 14,700 plus levels. So market has shown one-way movement. Now, typically a market which is moving one way always is considered overbought. Therefore, you are witnessing a correction already. We have seen market has fallen over the last 5 to 6 trading sessions. It has come down by 1,000 points. If we talk of Nifty, by 1,000 points. So therefore, caution has to be exercised, and you should be very selective, very choosy in your stock. Even if the market falls, you will still find stocks which are undervalued, which are very attractive in terms of book value. So your purchase, your investment should be very thoughtful, should be very well researched, and I would suggest you should take help of the experts, because sometimes we find small investors, they end up burning their fingers. You get tempted or you get carried away by the market movements, and at the end of the day, you end up either blocking your money or losing your money. So therefore, market movement will depend upon the announcements in the budget, but also we must not forget that the recent correction which has taken place because of global cues. We saw a very wide sell-off in the American markets, and we found that coronavirus in America is still not under control. Same goes for Europe. So I would say that the movement of market would also depend upon how this coronavirus is shaping in the Western world, particularly in Europe and US. So therefore, keep a watch and be very careful while investing. Sharad, if we go by the history, post-budget weeks have generally been about strong market movements on either side. In the last 7 budgets that were presented, Sensex fell by up to 4% post-budget on 4 occasions and delivered up to 7% returns in the remaining 3. What do you have to say about that?
Well, that is the brilliance and that is the beauty of the market here, because we have seen movements after the market which are very, very jerky. So therefore, it all depends. But this time, the good thing which has happened is that when the market touched 14,750, I'm talking of Nifty, just before the budget, now we are straight away jumping into the budget session on Monday when the market opens. The market has already corrected by more than 1,000 Nifty points. So therefore, there could be a chance that some of the announcements made in the budget may favor some of the sectors, but the remaining sectors, so market is in a wait and watch mood. Yes, you are right. I mean, it can go either way, but I am anticipating that maybe just after the budget, the market may show some more corrections in the sectors which may be left out or whatever. But in a week from there on, I think market will settle down and then start its up. I'm still very bullish on the market because the Indian economy as such is going to do very well. We heard the economic survey yesterday. We are going to witness a V-shaped recovery, and the next year is very promising. 11% plus GDP growth, I think should be fuel for any market. Suresh from Noida joins us now. Suresh, thank you for your patience. Please go ahead and ask your question. मेरा सवाल ये है कि अभी जीएसटी शुरू हुए 3.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी पेट्रोल और डीजल जो है वो जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो मेरा सवाल है कि अगर जीएसटी में 28% जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में भी अगर पेट्रोल डीजल आ जाए तब भी पेट्रोल कम से कम 30 रुपये लीटर सस्ता हो जाएगा पर लीटर। तो ये जीएसटी से बाहर क्यों रखा है पेट्रोल और डीजल? सुरेश जी, आपने बहुत दुरुस्त सवाल पूछा है। 3 चीजें जीएसटी से बाहर रखी गई है, एक पेट्रोल डीजल, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक अल्कोहल। इन 3 चीजों को बाहर इसलिए रखा गया था क्योंकि जब जीएसटी बनाया गया था उस समय जो राज्यों का राजस्व आता है, जो स्टेट्स को रेवेन्यू आता है, उसका ख्याल किया गया था। आपने देखा होगा जीएसटी के बनते टाइम काफी कश्मकश हुआ था। तो ये निर्णय किया गया, जो जीएसटी काउंसिल बनी, कि इन चीजों को बाहर रखा जाए जिससे राज्यों को इन 3 सोर्सेस से जो रेवेन्यू आता है वो बहुत हेवी है। तो ये डिसाइड किया गया कि इनको बाद में विचार करके जीएसटी के अंतर्गत लाया जाएगा। अभी जो राज्यों की पोजीशन है, फिस्कल पोजीशन जिसको हम कहते हैं, उनकी जो ग्रॉस स्टेट जीडीपी है, जो स्टेट जीडीपी है, वो बहुत हेल्दी नहीं है। राज्यों की जो फिस्कल पोजीशन है, मतलब उनकी जो डेट पोजीशन है, वो भी बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं समझता हूं इसीलिए ये निर्णय लगातार टाला जा रहा है। और जैसे ही हमें लगेगा कि राज्यों की पोजीशन, जीएसटी काउंसिल को लगेगा, हमें तो क्या लगेगा, जीएसटी काउंसिल इसका निर्णय करती है। जैसे ही जीएसटी काउंसिल को ये लगेगा कि राज्यों की पोजीशन अब यहां तक पहुंच गई है कि हम इन चीजों को बाकी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंतर्गत ले आया जाए तो पेट्रोल डीजल की कीमत लाजमी है, क्योंकि इस समय भी पेट्रोल डीजल की कीमत में ज्यादातर टैक्सेस ही हिस्सा है। उसमें सेंट्रल एक्साइज भी है और उसमें वैट भी है, उसमें राज्यों का जो फ्रेट भी होता है, डीलर्स कमीशन भी होती है, इसीलिए आपको पेट्रोल की प्राइस ज्यादा दिखती है। पर मैं समझता हूं कोरोना के दौरान इतना बार बार ये बात उठती है कि सरकार अब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, तो क्यों नहीं सरकार इसको कम करती है, टैक्सेस को, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। उसका जवाब यह है कि सरकार की जितनी भी वेलफेयर और विकास की स्कीम्स चल रही है, बहुत जरूरी है उनको चलाना। और उसके लिए जो रेवेन्यू आएगा, क्योंकि कोरोना के दौरान रेवेन्यू सरकार का भी गिरा, अगर हम लोगों की आय गिरी तो सरकार की भी साथ में आय गिरी, तो सरकार को भी अपनी जेब में पैसे चाहिए, वरना वो हम जैसे लोगों पर, आम जनता पर पैसे कैसे खर्च कर पाएगी। तो मुझे लग रहा है आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में, साल में पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के अंतर्गत लाया जाएगा। मुंबई से हमारे श्रोता गोपाल लाइन पे हैं। गोपाल जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। हाँ सर, अभी बरोबर है सर, लेकिन जी सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार जी सर, मेरे 3 सवाल है। मेरा आपके डिस्टर्बेंस है, मेरा आपका आवाज आ रहा है बरोबर? जी आ रहा है। हाँ जी, आप जरा दो सवाल पे रहिए गोपाल जी, क्योंकि मेरे को सामने क्लियरिंग नहीं आ रही है। जी नहीं, आपकी आवाज आ रही है। डीमैट अकाउंट सर, उसमें अगर कोई डेथ हो जाए, डिलीट करने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, नॉमिनेट के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, बोलते नया अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो बैंक में तो फटाफट हो जाता है, इसमें डीमैट अकाउंट में ऐसा क्यों नहीं है, थोड़ा बताइए। और दूसरा सर, ये जो इतना जो मार्केट में जो क्रैश है सर, जो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ सर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बहुत हर्ट होता है। अगर मार्केट में स्टेबिलिटी जरूरी है कि इस तरह ट्रैक करना जरूरी है, पहले ये दूसरा ये बताइए। तो तीसरा जो ये सर, मार्केट जो डबल 25,000 से 50,000 हो गया,
इसमें कई सेक्टर है जो 25,000 के ही लेवल पे पड़े हैं, तो उनको भी सर देखना चाहिए ना सर आगे। देखिए, पहले मैं पहले सवाल का जल्दी से जवाब दे दूं। आपने 3 सवाल पूछे। डीमैट अकाउंट में पहले तो मैं आपको ये बताऊं, नॉमिनेशन की फैसिलिटी होती है। आप जिस ब्रोकर के पास आपने अकाउंट खुलवाया है, आप अपना फॉर्म उनसे निकलवा के देखिए और वो आप उनसे कांटेक्ट करिए, तुरंत आपका नॉमिनी वहां पर रख देंगे। ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है आपको ये गलत जानकारी है कि उसमें नॉमिनेशन नहीं होता है। नॉमिनेशन होता है। आप सोमवार सुबह ही उनसे कांटेक्ट करें और अपना नॉमिनेशन कराएं। दूसरा, आपने पूछा कि मार्केट में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। देखिए, मार्केट तो डिमांड सप्लाई पे, शेयर्स पे चलता है। मार्केट वॉलिटी किसी के हाथ में नहीं होती है। जितने भी निवेशक जुड़े होते हैं, ट्रेडर्स जुड़े होते हैं, उनके खरीदने और बेचने से मार्केट ऊपर और नीचे जाता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपने बात करी, बल्कि मैं तो ये कहूंगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ज्यादा सेफ रहता है, क्योंकि आपको जो छोटे मोटे उतार चढ़ाव होते हैं वो उनका असर नहीं होता। अगर मैं 3 साल 5 साल की अवधि के लिए निवेश कर रहा हूं तो मुझे मार्केट के जो छोटे मोटे मूवमेंट्स हैं मैं उनसे इम्यून रहता हूं, मैं उनसे अछूता रहता हूं। तो इसलिए आपका जवाब यह है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको छोटे मोटे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आपका आखिरी सवाल ये था कि 25,000 50,000 कुछ शेयर्स पीछे रह गए। देखिए, जिन शेयर्स में निवेशकों का इंटरेस्ट बनता है और जिन शेयर्स में ज्यादा ट्रेडिंग होती है वहीं पर रुझान होता है। ये बात आपकी ठीक है कि कुछ शेयर्स आज भी जिनकी बुक वैल्यू बहुत हाई है, अपने बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। मैं समझता हूं आपको तो ऐसे शेयर्स ढूंढने चाहिए और लंबी अवधि में ऐसे शेयर आपको अच्छे रिटर्न देंगे, जहां पर बुक वैल्यू अट्रैक्टिव है, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है। वहां पर आपको ऐसे निवेश के मौके ढूंढने चाहिए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो शेयर्स निरंतर निवेशक ढूंढते रहते हैं, रिसर्च टीम ढूंढती रहती है और वो भी थोड़ा सा देर से चलते हैं पर वो सॉलिड चलते हैं, मजबूत होकर चलते हैं। तो आप ऐसे शेयर्स पे नजर रखिए और वो भी अवश्य चलेंगे। दिल्ली से हमारे श्रोता मनोज लाइन पे हैं। मनोज नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक इन्वेस्टर को अपने अकाउंट में कितने शेयर रखने चाहिए, मतलब पोर्टफोलियो में कितने शेयर रखने चाहिए? आपको कितने शेयर रखने चाहिए? देखिए, ये तो जिसकी जितनी कैपेसिटी है, आपने जितना अपना सेविंग्स शेयर मार्केट के लिए एलोकेट कर रखा है उसी हिसाब से आप रखेंगे। मान लीजिए आपके पास कुल मिला के 1 लाख रुपया है, आपको लगता है कि बाकी मैं 50,000 बैंक में रखूं, 20,000 रुपए का मैं गोल्ड में निवेश करूं और बाकी के 30,000 में शेयर मार्केट में करूं। तो ये तो व्यक्ति से व्यक्ति अलग डिफर करेगा, व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करेगा कि वो कितना रिस्क लेना चाहता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि शेयर मार्केट जितने भी निवेश के ऑल्टरनेट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा रिस्क शेयर मार्केट में रहता है। तो शेयर मार्केट में मैं आपको ये सलाह दूंगा, आप पैसा कितना रखें इसका उतना सवाल नहीं है। मैं आपको ये सलाह दूंगा, जब भी आप निवेश करें आप किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में उससे सलाह लेके करें। आप अगर स्वयं ये निर्णय करेंगे या कहीं से ऐसे सुन लिया, आजकल व्हाट्सएप घूमते हैं, मैसेजेस आते हैं, उन सब सुनी सुनाई बातों पे निवेश नहीं करना चाहिए। निवेश सोचकर समझकर, एनएससी का एक स्लोगन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। तो देखिए, इसी स्लोगन में आपके प्रश्न का उत्तर भी आता है। तो आप सोच समझ के करिए कितना पैसा कर रहे हैं। अगर हो सकता है आपको थोड़े पैसे में भी ज्यादा लाभ हो जाए, कई बार ये होता है ज्यादा पैसे में भी कम लाभ होता है या नुकसान हो जाता है। तो मैं समझता हूं अगर आप नए निवेशक हैं तो आपको 20-25% अपनी सेविंग्स के उससे ज्यादा एक्सपोजर मत करिए। जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाए आप अपने निवेश को शेयर मार्केट में बढ़ाते जाएं। Moving on, the registering second straight weekly losses, domestic markets plunged over 5% this week to post their biggest weekly decline in 8 months amid heavy selling by foreign funds and a bearish trend overseas. The Sensex at the Bombay Stock Exchange tumbled 2,968 points or 5.3% during the week to close at 46,286 yesterday, its worst weekly fall since May. After scaling several new record highs in January, the Sensex has slumped 3,506 points or 7% in the last 6 sessions. The Nifty tanked 843 points or 5.1% during the week to close at 13,635 yesterday. Nifty has also shed 1,010 points in the last 6 sessions. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index fell for the third week in a row to post its biggest weekly loss of 3.6% in 4 months, and the Small Cap Index shed 2.3%. और दिल्ली से हमारे श्रोता अमित लाइन पे हैं। अमित नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ नमस्कार जी, मैं दिल्ली से बोल रहा था जी। कोई पूछना नहीं है, आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज बहुत अच्छा समझा रहे हैं मुझे, बस इसी के लिए थैंक यू कहना था। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा कि आपको पसंद आ रहा है। हमारे
मार्केट मंत्रा की टीम के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट यही होता है कि आपको समझ आ रहा है और आपके काम आ रहा है. All right, moving on. The U.S. markets declined yesterday, registering its biggest weekly fall since October as investors gauged the ramifications of Johnson & Johnson's COVID-19 vaccine trial results. So the Dow Jones Industrial Average fell 621 points or 2% to 29,983. The S&P 500 lost 73 points or 1.9% to 3,714. And the Nasdaq Composite dropped 266 points or 2% to 13,071. All three main indices suffered the biggest weekly fall since the end of October, as the Dow and S&P lost 3.3% each and the Nasdaq declined 3.5%. For the month, the Dow dipped 2% and the S&P shed 1.1%, but the Nasdaq gained 1.1%. Both the S&P and Dow also closed below their 50-day moving average. Johnson & Johnson fell 3.6% as one of the biggest weights on both the Dow and S&P after the drug maker said its single-dose vaccine was 72% effective against the COVID in US with a lower rate of 66% globally. शरद, अगर हम देखें बाजार की जो हालत है लगातार पिछले एक हफ्ते से ज्यादा हो गया गिर रहा है, आपको लगता है कौन से ऐसे खास कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? जो इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह की गिरावट है उसका असर है या ये लिक्विडिटी का ओवरफ्लो है? क्या आपको लगता है, क्या रीजन है? देखिए, एफआईआईज ने हमने ये देखा कि भारतीय बाजार एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि जब जब एफआईआईज का पैसा आता है, क्योंकि वो बड़ा पैसा होता है, वो बड़े अमाउंट्स होते हैं, उससे मार्केट एकदम इफेक्ट होती है. हमने देखा कि एफआईआईज ने पिछले 5-6 सेशन में करीब 12,000 करोड़ रुपया निकाला. तो उसके निकालने की वजह से मार्केट गिरी. और ये ग्लोबल क्यूज तो है ही है, जो आपके अमेरिका से क्यूज आ रहे हैं. अभी जॉनसन एंड जॉनसन की बात हुई, उसकी जैसे ही पता लगा कि उसके वैक्सीन की एफिकेसी लो है तो मार्केट ने एकदम रिएक्ट किया. तो मुझे लग रहा है, प्लस अभी अमेरिका में नई सरकार आई है, नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वहां के राष्ट्रपति बाइडेन साइन कर रहे हैं. कुछ फेवर में है, कुछ अगेंस्ट है, कुछ जो ट्रंप साहब पहले चला रहे थे उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, कुछ उनको रिवर्स किया जा रहा है. तो मुझे लग रहा है मार्केट इस समय थोड़ी सी अनसेटल्ड हो रही है, क्योंकि वो वेट एंड वॉच मोड में है कि देखें ये नए जो एडमिनिस्ट्रेशन आया है अमेरिका में वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है. जहां तक भारत की बात है, मुझे लगता है क्योंकि दुनिया की सारी मार्केट्स अमेरिका को ट्रेल करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर भारत की जो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है मुझे लग रहा है वो आज भी मजबूत बनी हुई है. और अगर विदेशी मार्केट स्टेबल हो जाते हैं तो भारतीय मार्केट उतनी न्यूज से ही ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे. तो मिला जुला है, एफआईआई के पैसा विड्रॉ करना है, अमेरिका से ग्लोबल क्यूज नेगेटिव आना है, वो एक वजह हो गया. और उसके अलावा बजट जो हमारा आ रहा है, हमारा बजट, क्योंकि बजट से पहले मार्केट वेट एंड वॉच मोड में चला जाता है, क्योंकि ये अंदाजा नहीं लग पाता किस सेक्टर्स को क्या एलोकेशन मिलेगा, कौन सा सेक्टर आगे जाएगा, कौन सा सेक्टर नीचे जाएगा. तो मुझे लग रहा है कुछ बजट की वजह से भी वेट एंड वॉच मोड में मार्केट हल्का हुआ है, पर आने वाले समय में मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं. And so what do you think will keep the FIIs with us and not allow them to take their money out of the Indian markets? What will hold them back? Yeah, I think the GDP numbers and the economic survey presentation given yesterday was very, very fascinating. And I think if whatever has been spoken in the economic survey is an overall assessment of the economy for past and little bit for the future also. If 11.1% real GDP and 15.4% nominal GDP, India is able to hold on to that, I think FIIs will have no better place to invest because India is going to overtake China in terms of economic growth. Okay, sure. Okay. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. पंकज दिल्ली से हमारे साथ है, उनका हम सवाल नहीं ले पाए, क्षमा प्रार्थी हैं, उनसे अनुरोध है कि अगली बार अपना सवाल पूछें. And before we close the headlines once again, ICICI Bank's December quarter net profit rises 17.7% to 5,498 crore rupees. Benchmark domestic markets plunge over 5% this week to post their biggest weekly decline in 8 months. And in international markets, US stocks also register its biggest weekly fall since October. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.